सुनीता महाजन पहुंच चुकी हैं, सुनते हैं। यस, आइटम नंबर 1, श्री अरुण जेटली जी टू प्रेजेंट। Madam Speaker, I rise to present the budget of the Union for the year 2015-16. वर्ष 2015-16 के लिए budget in an बजट में economic प्रस्तुत कर रहा हूं environment which is far more positive than in the recent past. और आज का वार्षिक स्थिति जो है पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी India is है about to take off on a faster growth trajectory once again. और भारत इस समय ऐसी उड़ान पर है जहां आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी। By 0.3%, and the World Trade Organization has revised its forecast of the world trade growth from 5.3 to 4%. और वर्ल्ड Forecast for India, however, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जब सब जगह इस समय or उत्थान पर remain है। the same without downgrades. Madam Speaker, अध्यक्ष we महोदय, also embrace the states as equal partners in the process of economic growth. और केंद्र ने सभी राज्यों को States अपने have been साथ economically बराबरी का दर्जा दिया है। more than ever before. It is my belief that every rupee of public expenditure, whether undertaken by the center or the states, ये मेरा विश्वास will है contribute to कि the हर betterment of the रुपया people's life जो through job आम आदमी के creation, खर्च पर poverty होगा elimination and economic growth. वो अधिक नौकरियां In the last दिलाने 9 में months, और The आर्थिक Indian व्यवस्था को government headed by सुधारने Prime में Minister होगा। Shri Narendra Modi has undertaken several significant steps to energize the economy. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनेक कदम उठाए हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ The हो world is predicting that it is India's chance to fly. और सारा विश्व कह रहा है कि अब ये भारत का अवसर है कि वो टेक ऑफ कुछ करे, तो फूल उड़ान खिलाने भरे। हमने और कुछ फूल खिलाने हैं। मुश्किल ये है, बाग में अब तक कांटे कई पुराने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। अरुण जेटली ने कहा कि बाग में कांटे बहुत हैं, लेकिन हमें फूल खिलाने हैं। finances, it has historically become significant opportunity to indicate the direction and pace of India's economic policy. ऐतिहासिक दृष्टि से अब हम इस कदम से चलेंगे, आर्थिक कदम से, वो समय आ गया है। investment and passing on the benefit of growth process to the common man, woman, youth and और child. जो भी प्रगति की वृद्धि है वो आम आदमी तक पहुंचनी This is the चाहिए। path we will doggedly and relentlessly pursue. हम इसी As the पथ Prime पर Minister has लगातार often said, चलते रहेंगे। We are a round the clock, round the year government. और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम ऐसी सरकार हैं जो पूरे वर्ष 24 घंटे काम करती है। In November 2012, CPI inflation stood at 11.2%. The current account 2012 में by the जो first quarter मुद्रा of स्फीति है वो 2013-14 अधिक had reached 4.6% of GDP, and the normal foreign exchange flows until March 2014 were 15 billion US. We inherited a sentiment of, if I may say so, doom and gloom. हम and लोगों ने investor जब community यहाँ पर almost written कार्यभार संभाला तो वो We एक have बहुत come a long way ही since विषम then. परिस्थिति थी, The निराशाजनक थी। CPI inflation is 5.1%, and the wholesale price inflation is negative. जो The current account होलसेल deficit for के the year दाम पर is इस समय expected to be जो below मुद्रा स्फीति 1.3% है of GDP वो शून्य based है। on the new series. The real GDP growth is expected to accelerate to 7.4%, और जो making India the जीडीपी की fastest growing वृद्धि large है economy in the वो world. 7.8% Foreign inflows since होगी। April 2014 have been about 55 billion US, so that our foreign exchange reserves have increased to a record of 340 billion. और हमारी विदेश विनिमय जो by 6.4% against the व्यवस्था broad है basket of वो बहुत currencies, ऊंची हो चुकी and है। ours is the second best performing stock market amongst the major economies. और जो In short, Madam महत्वपूर्ण Speaker, अर्थव्यवस्थाएं We have हैं turned around the उनमें economy, हमारी स्टॉक dramatically मार्केट दूसरे restoring दर्जे पर है। macroeconomic stability and creating conditions for sustainable poverty elimination, job creation, durable हमारा ये double-digit प्रयास economic growth. रहेगा कि हम अधिक से Domestic and अधिक international investors नौकरियां लोगों are को seeing us उपलब्ध with कराएं renewed interest and hope. और हम नई being आशा mindful के of the संचार से challenges. आगे बढ़ रहे हैं। Madam Speaker,
अध्यक्ष This gives महोदय, us reason to feel optimistic. और हमें With all अनेक कारण है humility at my जिसके command, कारण हम I आशावादी हैं। submit that this opportunity has arisen because we have created it. ये एक अवसर The people इसलिए of आया India है have voted क्योंकि हमने resoundingly इसका निर्माण for किया है। quick change, faster growth, highest levels of transparency. परिवर्तन They और wanted the जो scam, हमारी scandal, वृद्धि corruption है urge to end. उसकी गति अधिक They रहेगी। wanted a government in which they can trust. We have lived up to that trust. लोग चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जिसमें उनकी आस्था हो, Not only और हमने been उनकी आशा के अनुरूप काम on किया the है। macroeconomic areas alone. Illustratively, action has been taken with regard to allocation of natural resources, financial inclusion, health and hygiene of the common man, ये केवल बड़े बड़े नगरों के आसपास की अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि चाहे वो सुधार हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, और सफाई स्वच्छता हो, welfare of labor, और agricultural जो productivity, मजदूर वर्ग है increasing farm उसके incomes, कल्याण की भी power व्यवस्था digital हो, connectivity, और skilling our youth, हम अपनी efficient and नई better work पीढ़ी के culture in लोगों our को, government, युवा वर्गों को ease of सक्षम doing बनाएं business, कि वे mainstreaming डिजिटल northeastern इकोनॉमी में states, बढ़ सकें। and reviving our pride in the nation and culture. और हमने अपनी giving the संस्कृति में, details अपनी in an अर्थव्यवस्था annexure to this में speech. और अपने गर्व का Madam अनुभव किया है। Speaker, of the work that we have done, I would like to talk of 3 achievements. जो कार्य अभी तक हमने किया quality and है, हम conviction of केवल our government. 3 बातों की चर्चा करना चाहेंगे। One is the success of the Jan Dhan Yojana. जनधन Financial योजना की inclusion has been सफलता, talked about for decades now. और Who would have thought that अनेक in a short वर्षों तक span of इसकी हमने 100 चर्चा days, की है। over 12.5 crore families could have been brought into the financial 12.5 picture. करोड़ परिवार ऐसे The other is हैं coal जिन्होंने auctions. इसका लाभ उठाया है। Earlier, the states only got benefit of royalty. पहले Now, by transparent राज्यों को auction केवल process रॉयल्टी that we are carrying का ही out, the उनको coal-bearing लाभ states मिला था। will be getting several lakhs of crores of rupees, which they can use for the creation of long-awaited community assets and the अब welfare of राज्यों को कई लाख Third, करोड़ Swachh रुपए Bharat, उपलब्ध which होंगे we have been able ताकि to transform into a वो आम movement आदमी के to जीवन regenerate स्तर को India. ऊंचा उठा I सकें। can speak of, for example, the 50 lakh toilets already constructed in 50 लाख शौचालय And I can assure the अभी तक members of बनाए this जा August चुके House हैं। that we will indeed attain the target of building 6 crore toilets. 6 करोड़ शौचालय बनाने का हमारा Swachh Bharat लक्ष्य is not a program हम of पूरा कर hygiene and सकेंगे। cleanliness, but at a deeper level a program of preventive health care and building इससे न केवल awareness. स्वच्छता रहेगी, We have now बल्कि embarked on हम 2 more game-changing व्यवस्था reforms. और GST जो लोगों के and what the स्वास्थ्य को भी economic survey सुधार has सकेंगे। called the JMAM Trinity, Janadhan Aadhaar Mobile, जनधन implement the direct आधार transfer of मोबाइल, benefits. इससे हम GST will put in place इससे a लोगों में state-of-the-art जागरूकता indirect पैदा tax करेंगे। system by 1st April 2016. The पहली JAM अप्रैल Trinity will allow us to 2016 transfer तक benefits हमको in a इस तरह से leakage-proof, well-targeted, जो cashless manner. हमारा लक्ष्य है Madam उस Speaker, पर हम प्राप्त one कर of the सकेंगे। achievements of my government has been to conquer inflation. और This मुद्रास्फीति decline, in my पर view, विजय represents पाना a हमारा structural लक्ष्य shift. रहा है। Going forward, we expect the CPI inflation to remain close to 5% by the end of the year. और हम This आशा will करते हैं कि allow इस further वर्ष के easing of अंत monetary तक policy. मुद्रास्फीति To ensure that our 5% victory के over आसपास inflation is रहे। institutionalized and hence continues, we have concluded a monetary policy framework agreement हम with the लोगों ने Reserve Bank of India. And अर्थव्यवस्था as का I promised in my एक budget speech नया 14-15. संदेश दिया This है। framework clearly states और objective जो of keeping हम inflation below 6%. We will मुद्रास्फीति move को to amend the RBI Act this year 6% से and नीचे provide for a रखेंगे। monetary policy committee. The Central Statistics Office has recently released a new series of GDP जो which केंद्रीय involves a number आंकड़े of changes का कार्यालय relative है, to the old उन्होंने series. नए आंकड़े Based दिए on the हैं। new series, estimated GDP for 14-15 is 7.4%. और हमें आशा है In कि जो 2015-16 जीडीपी वो is 7.5 के आसपास between 8 ऊपर and भी जा सकती है। 8.5%. Aiming for a double-digit rate seems feasible very soon. 2 आंकड़े के हम I will अपने now लक्ष्य को come to प्राप्त the कर task सकेंगे, ahead of us. ये संभव है। In respect of social and economic indicators for decades, सामाजिक now we have worked और in terms of आर्थिक percentages हम and numbers अपने of beneficiaries लक्ष्य की ओर covered. बढ़ेंगे। It is quite obvious that incremental change is not going to take us anywhere.
We have to think in terms of a quantum jump. हम केवल छोटी The मोटी year वृद्धि 2022 पर से will संतुष्ट be नहीं the रहेंगे, Amrit Mahotsav, बल्कि एक the बड़े उत्सव 75th में year जाएंगे। of India's independence. The vision of what the Prime Minister has called Team India, led by the states and guided by the central government, should include प्रधानमंत्री ने a roof ये कहा for है each family कि in India. ये केवल The हम call given for housing for all by केंद्र सरकार नहीं 2022 बल्कि राज्यों would के साथ require मिलकर Team India to के लोगों complete के 2 साथ crore मिलकर houses in के urban अपने areas लक्ष्य की and प्राप्त 4 करेंगे। crore houses in rural India. 4 करोड़ Each house in the घर country जो हम गांव में भी basic बनाएंगे, facilities of केवल 24 नगरों में hour ही power नहीं, supply, clean drinking water, a toilet and be शुद्ध connected साफ to a road. पेयजल और At least one शौचालय member of each जहां family पानी की व्यवस्था should रहेगी। have access to means of livelihood and employment or economic व्यक्तियों opportunity to को improve उन सभी his or her सुविधाओं lot. के पास Substantial लाया reduction of जाएगा poverty. जिससे उनके जीवन All के our स्तर में schemes should सुधार हो। focus on and center around the poor. Each of ये us has to हमारी commit सारी ourselves योजनाएं to this task of निर्धनों के, eliminating गरीब absolute वर्गों के poverty. आसपास घूमती Electrification रहेंगी। by 2020 of the remaining 20,000 villages in the country, including the off-grid solar power generation. 2020 Connecting तक each of the हम 1,78,000 unconnected habitations. 1,78,000 ऐसे This will घर require जहां पर completing सौर 1 ऊर्जा lakh अभी तक kilometers of नहीं roads पहुंच पाई currently है, under वहां construction, पहुंचाएंगे plus sanctioning and building another 1 lakh kilometers of road. और 1 Good लाख health is a किलोमीटर से necessity अधिक सड़क for निर्माण both भी quality किया of life जाएगा। and a person's productivity and ability to support his or her family. इस तरह Providing से medical हर facilities व्यक्ति in each village अपने परिवार and का city पालन is पोषण absolutely कर सकेगा। essential. Educating and skilling our youth to हम enable them अपनी to get नई पीढ़ी के employment is the नौजवानों altar को, before नवयुवतियों which we को must bow. शिक्षित To करेंगे ensure कि that वे there is अपने a senior secondary क्षमता school बढ़ा within सकें। 5-kilometer reach of each child, we need to upgrade 80,000 secondary schools. 80,000 से अधिक माध्यमिक का जो विद्यालय हैं उनके स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा ताकि हर विद्यार्थी 5 किलोमीटर के उसके अंदर ही अपने विद्यालय में जा Increase in सके। agricultural productivity and realization of reasonable prices of agricultural production is essential for the welfare of rural people. We should commit ग्रामीण to लोगों के increasing the उत्थान के लिए irrigated आवश्यक है area, कि improving जो हमारे efficiency उत्पाद of हैं, existing कृषि irrigation उत्पाद schemes, हैं, वो अच्छे promoting हों agro-based industries और and value कृषि addition and increasing के farm incomes साधनों पर and जो reasonable prices हमारे for farm produce. In इंडस्ट्रीज हैं terms of उनमें भी communication, सुधार हो। the rural-urban divide should no longer be acceptable to और us. अब We have to ensure ग्रामीण और connectivity नगर के to all बीच में villages जो without it. इस समय पर 2/3 of भेदभाव our था population is वो below नहीं 35. होगा। To ensure that our young get proper jobs, we have to aim to हमारे make India the नौजवानों को manufacturing hub of the world. हमारे The Skill नौजवानों India को and the Make in अच्छे India programs काम मिल are सकें aimed at doing इसके लिए this. हम पूरा प्रयास करते Also to रहेंगे। encourage the growth and grow the spirit of entrepreneurship in India हम and supports the new startups. Thus एंटरप्रेन्योरशिप can यानी our youth किस प्रकार turn से into being अपनी ही from बुद्धि job का seekers उपयोग करते हुए अपने job बल का creators. उपयोग करते हुए The हम आगे eastern and बढ़ते रहें इसमें eastern हम regions of our प्रोत्साहन country देते रहेंगे। are lagging behind in development on many fronts. We need to ensure that they are at par with the rest of the economy. हम By चाहते the हैं time कि हम the 75th year of India's अर्थव्यवस्था independence, के Amrit Mahotsav हर of our independence is हर reached, दृष्टिकोण से we have उसको to आगे achieve बढ़ाते रहें। all the above so that India can become a prosperous country and a भारत responsible global एक power. This will be विश्व our की true and शक्ति बन meaningful सके tribute to our और freedom fighters. अर्थव्यवस्था ऊंची As होती I रहे, said अच्छी earlier, होती रहे, Madam Speaker, पूरा प्रयास जारी I am also रहे mindful of the 5 challenges I have to reckon with. अध्यक्ष Firstly, महोदय agricultural incomes are जो under 5 stress. चुनौतियां हैं Our second challenge उनसे is हम आपको increasing अवगत करा रहे हैं। investment व्यवस्था ऊंची As होती I रहे, said अच्छी earlier, होती रहे, Madam Speaker, पूरा प्रयास जारी I am also जारी mindful रहेगा। of the 5 challenges I have to reckon with. अध्यक्ष Firstly, महोदय agricultural incomes are जो under 5 stress. चुनौतियां हैं Our second challenge is उनसे हम आपको increasing अवगत करा investment रहे in हैं। infrastructure. With private investment in infrastructure via public-private partnership model, जो still weak, PPP यानी public investment पब्लिक needs to प्राइवेट step in to पार्टनरशिप जो catalyze है investment. उसके Our माध्यम third challenge से is that हम manufacturing लोगों has को declined from आगे 18% to बढ़ाएंगे। 17% of GDP, and as per the new GDP data, the manufacturing exports have remained stagnant at about 10% जो of the नई GDP. जीडीपी के अनुसार
अभी मेक इन इंडिया यानी भारत में ही निर्मित करो, ये अभी तक स्थिर रहा है, आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए अर्थव्यवस्था में हमें बाहर आगे बढ़ना है। We have devolved a 42% share of the divisible pool of taxes और to the states. जो हमारे कर हैं, इनका 42% अब हम राज्यों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। Increase, which would empower the states. इस तरह से जो राज्य हैं, उनको आर्थिक सशक्तिकरण रहेगा। 5.24 lakh crores in 15-16. As against a वर्ष 2015-16 में as per the revised जो estimates आम आदमी जो ग्रामीण अंचल में रह रहा है, उसको भी इसका लाभ मिल सकेगा। Transferred by way of grants, plans and transfers. Thus, the total transfer to the states will be about 62% of the total receipts of the country. इस प्रकार से जितनी हमारी आय होगी देश की, उसका 62% जो है वो राज्यों तक, राज्यों के पास पहुंचाया जाएगा और शेष जो है वो केंद्र के पास होगा। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। Fiscal space for the center. The government has decided to continue to supporting important national priorities such as agriculture, education, केंद्र ने ये निर्णय लिया है rural कि infrastructure, हम including roads program, कृषि को, targeted for the वहाँ की poor सड़कों and को underprivileged, और which will be वहाँ all के जो continued गरीब by us. निर्धन वर्ग हैं, जिनको अभी तक जो सक्षम नहीं है, उन तक हम ये लाभ पहुंचाते रहेंगे। But squeezed. I have to meet the fifth challenge of maintaining और the fiscal discipline. पांचवी चुनौती है कि फिस्कल अनुशासन यानी अर्थव्यवस्था में अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। Due to lower inflation. और जब हम मुद्रास्फीति को घटाएंगे और आम आदमी तक ये लाभांश पहुंचेगा, तो इस प्रकार से जो 4.1% GDP का हम और हम चाहते हैं कि गरीबी को का उन्मूलन करने के लिए इन चुनौतियों को हम देखें और व्यवस्था को सुधारें। Of the GDP. This is the fiscal target. But the journey has to take into account the need for increasing public investment. और हमारी जो ये यात्रा है, आर्थिक यात्रा है, इसमें हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट की तरफ विशेष ध्यान देंगे। Of which rupees 70,000 crore would be the capital expenditure from the budgetary outlay. 70,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। Reduced fiscal space, uncertainties in the implementation of the GST will create, and the likely burden of the report of the 7th हमारे बीच में कभी-कभी असमंजस बन जाता है, असमंजस की स्थिति को दूर किया जाएगा। Fiscal consolidation, pro-cyclically, would in my opinion not be pro-growth. With economy improving, the pressure for accelerated fiscal consolidation too has decreased. और क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अब सुधर रही है, to a fiscal deficit of 3% हम in 3 फिस्कल years डेफिसिट rather than 2 को years हम केवल as envisaged previously. 3% तक लाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। My targets are 3.9% for 15-16, 15-16 के लिए 3.9% and 3% for 17-18. और 17-18 के लिए 3%। Fiscal space will go towards funding infrastructure investment. और I will हम be moving amendments accordingly in the finance bill to the FRBM Act. पैसे देने के लिए पूरा प्रयास करते रहेंगे। अध्यक्ष महोदया, I want to round up the discussion on fiscal roadmap in an optimistic tone. इस अर्थव्यवस्था के मार्ग को Positional shift. The aggregate envelope for job हम creation, बता poverty रहे हैं elimination, कि हम and किस building प्रकार से infrastructure is not पुराने disturbed. लीक से In हटे fact, it goes up this year and every subsequent year in the same और इस proportion वर्ष as tax revenues और of the आने वाले union प्रति and the वर्ष state governments increase. प्रत्येक वर्ष From में this national perspective of public finances, हम not only is the path of राष्ट्रीय fiscal स्तर, consolidation राष्ट्रीय on track, लक्ष्य aggregate annual capital expenditure of the government और as a कुल whole मिलाकर के जो can be expected to कैपिटल rise खर्च है significantly हमारा by more than 0.5% of the GDP. और GDP का अगर बैठ के भी ये करना चाहे तो यू कैन। अध्यक्ष महोदया ने वित्त मंत्री I'll certainly request you, madam. को अनुमति दिया कि आप यदि आप चाहें तो बैठ करके बोल It सकते may be हैं। noted that the budget reflects considerable scaling up of the disinvestment figures. This will include
both disinvestment in loss-making units and some strategic disinvestments. कुछ डिसइन्वेस्टमेंट यानी जो पहले इन्वेस्ट किए हैं उनको अब in its resolve हटाना as है। Indians to regain our preeminence as just and compassionate society. Well-intentioned schemes introduced in the past नई have योजनाएं often been जिससे हम ill-targeted, समाज में riddled with सुधार ला leakages सके। and delivered with inefficiency. The same is true of subsidies. जो Subsidies are सब्सिडी needed for the poor यानी and सरकार की those तरफ less से well off. वित्तीय सहायता दी What जाती we है need is a well-targeted मूल्य system कम हो। of subsidy delivery. We need to cut subsidy leakage, हमको सब्सिडी not को कम subsidies करना themselves. होगा। We are committed to the process of rationalizing subsidies और based on this सब्सिडी approach. यानी ये वित्तीय सहायता We have मूल्य embarked कम on करने that के path. लिए The हमें direct कम transfer करने of की benefits आवश्यकता है। started mostly in scholarship schemes will be further जो expanded छात्र with a view to वृत्ति increasing विद्यार्थियों के the लिए number है। of beneficiaries from the present 1 crore to 10.3 crores. 1 करोड़ से Similarly, 10.3 करोड़ उसकी राशि को बढ़ाया जा रहा being है। transferred directly as LPG subsidy to 11.5 crore LPG customers. और एलपीजी में जो सब्सिडी जा रही है I'm sure these वो persons who ग्राहकों are better को off, बड़ी such as the संख्या में top दी tax जाएगी। bracket, and those who are generally concerned with the poor and the welfare of the poor, such as members of this house, will give up their LPG subsidy voluntarily. उन्होंने कहा इस संसद में इस लोकसभा के जो सदस्य हैं जो ये कह सकते हैं कि उनको सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, Our commitment to farmers runs deep. वो राशि जो है Already taken गरीबों major से वो दी steps जा to address सकेगी। two major factors critical to the agricultural production, soil and water. An ambitious soil health card जो has हम been launched to अपनी improve धरती the के soil स्वास्थ्य को fertility on a देखेंगे sustainable basis. और उसमें In order सुधार to लाएंगे। improve soil health, I propose to support Agricultural Ministry's organic farm scheme, Paramparagat Krishi Vikas Yojana, the Pradhan Mantri Gram Sinchai Yojana is aimed at अनेक irrigating the योजनाएं field of जिनका every नाम farmer and improving the वित्त water मंत्री usage अरुण जेटली जी ने efficiency लिया, to provide उन per सबको drop more crop. उस I am सबको allocating rupees आर्थिक सहायता दी जाएगी 5,300 crores to ताकि support micro कृषि irrigation उत्पादन watershed बढ़ programs सके। and Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. I urge the states to chip in substantially in this vital sector. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को भी To अब support उसमें अपना agriculture पैसा sector देना चाहिए with the help ताकि of दोनों effective मिल and करके आगे hassle-free बढ़ सके। agricultural credit with special focus on small and marginal farmers. जो I छोटे propose किसान to हैं, allocate rupees मध्यम वर्गीय 25,000 किसान हैं, crores in उनके लिए 15-16 राशि देने to के the लिए corpus of rural infrastructure development और fund जो set up by ग्रामीण NABARD. क्षेत्रों में हम 15,000 व्यवस्था को crores आगे बढ़ाएं। long-term rural credit fund, 45,000 crore for short-term cooperative rural 45 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं short-term ताकि RRB refinance fund. जो मध्यम वर्गीय और नीचे के किसान हैं उनको सहायता दी जा सके। I have therefore set up an ambitious target of rupees 8.5 lakh crores. 8.5 लाख करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना वित्त मंत्री ने बनाई है। Our government is committed to supporting employment through Manrega. वर्तमान सरकार मनरेगा के माध्यम से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी यानी नौकरी देगी। The quality and effectiveness of activities under Manrega. I have जो made an initial allocation प्रभावशाली of rupees 34,699 वहां पर योजनाएं हैं, crores for this program. उनको सहायता दी जाएगी। While the farmer is no longer in the clutches of the local और trader, अब जो किसान है produce still वो does not command the best notional price. स्थानीय To जो increase incomes of farmers, it is लोग that we हैं, create a national स्थानीय agricultural market व्यापारी which हैं, will have उनके चंगुल में incidental नहीं benefit है। of moderating prices. I intend this year to work in the states in NITI for the creation of a unified national agricultural market. और अब Madam Speaker, एकीकृत राष्ट्रीय our government firmly बाजार believes बनाया that जाएगा development has to generate inclusive growth. ताकि While जो large corporate वृद्धि and हो business entities वो have a role to अनेक play, वर्गों this has to को be उसमें शामिल complemented किया जा by सके informal sectors, enterprises which generate maximum employment. और There इस तरह are से जो आर्थिक 5 वृद्धि crore होगी 77 उससे lakh small हम business लोगों को units, और भी mostly काम दे individual सकेंगे, proprietorship, रोजगार which बढ़ run सकेगा। small manufacturing, trading and business service businesses. 62% of these are owned by
SC, STs and OBCs. 62% ऐसी योजनाओं में अब हम जनजातियों को और जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको भी शामिल करेंगे। I therefore propose to create a micro units development refinance agency, Mudra Bank की स्थापना की जाएगी जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की लागत रहेगी। The Mudra Bank will refinance microfinance institutions through a Pradhan Mantri Mudra Yojana. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अनुसार SC, ST अब हम enterprises. जो SC, ST के जो will greatly increase the confidence of our young, educated or skilled workers who would now be able to become the first generation entrepreneurs. Existing small businesses too will be able to expand their activities. छोटे-छोटे व्यापारों में अब जो पहली पीढ़ी इन लोगों की आएगी और ये जो सहायता है The working capital requirement of the MSME arises due to long receivables in the realization cycle. और इससे ये हम बार-बार उनकी सहायता करते रहेंगे। Financing of trade receivables of MSMEs from corporates to other buyers through multiple financiers. This should improve the liquidity in the MSME sector significantly. और इस तरह से हम जो आर्थिक सहायता देंगे उसमें हम कानूनी दृष्टि से जो लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालियापन है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। We will bring a comprehensive bankruptcy code in the year 2015-16. वर्ष 2015-16 में हम एक व्यापक कानून लाएंगे कि दिवालियापन पर हम नियंत्रण कर सकें। Access of the people to formal financial system. और जो आम आदमी है वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का भागीदार बने, ये स्थिति उत्पन्न होगी। Nearly 1,54,000 points of presence spread across villages of the country. I hope the postal department will make its proposed payments bank venture successful. अनेक गांवों तक अब हम डाकघर के माध्यम से जनधन योजना और बैंकिंग काम के अंदर इन्वॉल्व हर डाकघर को बैंकिंग का काम भी रहेगा और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो बैंक्स नहीं हैं उन सब का भी समर्थन लिया जाएगा। 500 crores and above will be considered as financial institution in terms of the Sarfasi Act. A large portion of India's population is without insurance of any kind. भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है जिनके जीवन बीमा नहीं है। Population ages, it also is going to be pensionless. और जो by the success of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, नई पीढ़ी के लोग हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसके आधार पर सभी भारतीयों को, विशेषकर निर्धन वर्ग को हम सोशल सिक्योरिटी भी लाएंगे। सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना डेथ रिस्क ऑफ ₹2 लाख की राशि तक, जिसमें केवल हर वर्ष 12 रुपए दे करके जो इंश्योरेंस कराएंगे वो उसको ₹1 महीना यानी पूरे वर्ष में 12 रुपया देने से और 2 लाख के एक्सीडेंट दुर्घटना के इंश्योरेंस बीमा हो जाएगी। और उसी अनुसार अटल पेंशन योजना, जिसके अनुसार एक पेंशन योजना आरंभ होगी। गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 50% of the beneficiaries premium, और जो प्रीमियम देना है उसका 50% सरकार देगी। in its new accounts opened before 31st December 2015. और 31 दिसंबर 2015 तक जो खाता खोला गया है उसका 50% सरकार देगी। In
its new accounts opened before 31st December 2015. और 31 दिसंबर सार्वजनिक की जाएंगी। 2015 तक जो खाता खोला गया है, उसमें से आधा सरकार देगी, जो निर्धन लोग हैं पेंशन मिलनी आरंभ। उसमें जो वो पेंशन का धन बनाएंगे उसमें आधा सरकार देगी और 60 वर्ष के बाद हर वृद्ध को पेंशन मिलेगी। योजना which will cover the natural and accidental death risk of ₹2 lakhs. The premium will be ₹330 per year or less than ₹1 per day for the age group 18 to 50. 18 से लेके 50 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो एक छोटी राशि देने के बाद एक अपना बीमा करा सकेंगे और बड़ी राशि के लगभग 5 लाख के आसपास उनको Citizens welfare इंश्योरेंस उनका ये बीमा हो जाएगा। for appropriation of these amounts to a corpus which will subsidize the premiums of the vulnerable groups such as old age pensioners, BPL card holders, जो वृद्ध हैं, farmers and others. जो A detailed scheme किसान हैं, issued in March this उन सब के लिए एक विस्तृत और व्यापक with regard योजना के बारे में हम जल्दी ही बताएंगे। which is now approximately 10.5 crores, out of which over 1 crore are above the age of 80. 10.5 करोड़ Rural areas जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिसमें 1 करोड़ से अधिक ऐसे हैं जिनका आयु इस समय 80 वर्ष से ऊपर है। ours is a society that venerates its elders. हमारा ऐसा समाज है जो अपने वृद्धों का सम्मान करता है। Aids and assisted living devices for senior citizens living below the poverty line. और ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार जो है वो आगे आएगी। To ensure that no Indian citizen will have to worry about illness, accident, और अब कोई भी भारतीय नागरिक को चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि यदि वो बीमार पड़ गया तो क्या होगा, कहां से खर्चा आएगा। also remains committed to the ongoing welfare schemes of the SCs, STs and women. और जहां तक जनजातियां, अनुसूचित जातियां हैं, उनकी जो अभी भी जो योजनाएं हैं उसके प्रति हम समर्पित हैं। 851 crores, STs 19,980 crores, women 79,258 crores. An integrated education and livelihood scheme एकीकृत शिक्षा और हमारी इसके अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे certificate to obtain one and find a better employment. और अब हम उनको जो व्यवस्था देंगे वो बहुत ही आगे बढ़ती रहेगी। Government of India will support in 2015-16 an exhibition, The Everlasting Flame. 2015-16 में of Minority Affairs is being protected. हम एक ऐसी योजना बनाएंगे कि जो 3738 crores. जो हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्रालय है वो उसमें ध्यान देगा। Madam, this is no secret that the major slippage in the last decade has been on the infrastructure front. Our अध्यक्ष महोदया, इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले वर्ष में जो हमने हमारी विफलता रही है वो and gross budgetary इन support to the railway क्षेत्रों में रही है। 15,031 and rupees 10,050 crores respectively. The capex of 50 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। सरकारी क्षेत्र की यूनिटों का पूंजी व्यय 3,17,889 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। इसमें संशोधित अनुमान 2014-15 से लगभग 80,884 करोड़ रुपए की वृद्धि है। वस्तुतः अवसंरचना में सभी निवेश वर्ष 2015-16 में 2014-15 के मुकाबले सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों के केंद्र की निधियों और संसाधनों से 7,000 करोड़ बढ़ जाएंगे। दूसरा, मैं राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि स्थापित करना और इसमें 20,000 करोड़ का वार्षिक प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए धन प्राप्त करना चाहता हूं। इससे यह ट्रस्ट बदले में ऋण जुटाने और भारतीय रेल वित्त निगम और NHB जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों में इक्विटी के रूप में निवेश कर सकेगा। इसके बाद अवसंरचना वित्त कंपनियां
इस अतिरिक्त इक्विटी को कई गुना बढ़ा सकती हैं। तीसरी, तीसरी में रेल, सड़क और सिंचाई क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कर मुक्त अवसंरचनाओं बांडों को जारी करने की अनुमति देना चाहता हूं। तीसरा, मैं रेल, सड़क और सिंचाई क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कर मुक्त अवसंरचना बांडों को जारी करने की भी अनुमति देना चाहता हूं। चौथा, अवसंरचना विकास के सरकारी निजी भागीदारी मोड की समीक्षा करना एवं पुनरुज्जीवित करना है। इसमें शामिल प्रमुख मुद्रा है जोखिम को पुनर्संतुलित करना। अवसंरचना परियोजनाओं में सरकार को निस्संदेह इसको पूर्ण रूपेण आत्मसात किए बगैर जोखिम के बड़े भाग को वहन करना होगा। पांचवा, मैं नीति में अटल नवोन्मेष मिशन की भी स्थापना करना चाहता हूं। अटल नवोन्मेष मिशन जोखिम के बड़े भाग से संबंधित हैं, उन सब की सहायता ली जाएगी और उसके अनुसार ही इस बारे में हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसलिए 150 करोड़ से अधिक की राशि हम इसमें लगाएंगे। भारत के पास सुप्रतिष्ठित और विश्व स्तरीय आईटी उद्योग है। इसके पास लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात होता है, सीधे लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार देता है। अब हम इन्हें आरंभ करने में अधिक सूची देख रहे हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, विचारों से मूल्यों का सृजन करना और उन्हें कार्यक्रमों एवं आरोही उद्यमों में बदलना तथा कारोबार हमारे युवा वर्ग को कार्य में लगाने और हमारे देश का समावेशी एवं स्थायी विकास करना हमारी कार्यनीति का मुख्य आधार है। वैश्विक पूंजी जुटाने की अधिक उदार प्रणाली, हमारे उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नत सुविधाएं, आधार पूंजी और विकास पोषण और कारोबार करने की सुगमता जैसी चिंताओं, जिससे खरबों डॉलर के मूल्य का सृजन होगा, का निराकरण ट्रिलियन डॉलरों के सृजन करने के लिए किया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ सरकार सेतु, स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग नामक तंत्र की स्थापना कर रही है। सेतु एक औद्योगिकीय वित्तीय उद्भवन होगा और अन्य स्वरोजगार के क्रियाकलापों, विशेषकर प्रौद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों में व्यवसाय चलाने के सभी पहलुओं की सहायता करने हेतु सहायता कार्यक्रम होगा। इस प्रयोजन के लिए मैं नीति आयोग में आरंभिक रूप में 1000 करोड़ रुपए निर्धारित करता हूं। चूंकि लघु पत्तनों में सफलता दिखाई दी है, निजी क्षेत्र के लिए पत्तन आकर्षक निवेश संभावना बन सकते हैं। पत्तनों को निजी क्षेत्र में ऐसा निवेश जुटाने तथा उनके पास अप्रयुक्त पड़े भू संसाधनों का उत्थान करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिए निजी क्षेत्र के पत्तनों को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित होने और कंपनियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। Amount of time and resources. समुचित रूप से कार्यशील पूंजी बाजार के लिए यथोचित उपभोक्ता संरक्षण की भी जरूरत है। अतः मैं क्षेत्रीय तटीय वित्तीय निपटान एजेंसी की स्थापना करने के लिए कार्यबल बनाने का प्रस्ताव करता हूं। यह सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान करेगी। लेकिन फिर भी अगर हम सही मायनों में हमें भारत को वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र, वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण, समाधान निगम और लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी संबंधी कार्यबल को सौंपे गए कार्य में संतोषजनक प्रगति होगी। उसके लिए हम एक समिति गठन करेंगे ताकि और वो ये स्थापना करने के लिए कार्य बल बनाने का प्रस्ताव करता हूं। यह सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान करेगी। यह सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान करेगी। मुझे कथन को सूचित करते हुए खुशी हो रही कि वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र मुझे समाधान निगम और लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी संबंधी कार्यबल को सौंपे गए कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है।
हमने भारतीय वित्त संहिता के संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त किए। इस समय इनकी समीक्षा न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति कर रही है और सरकार इसी तरीके की परियोजनाओं को लागू करेगी दूसरे परियोजनाओं के लिए, सड़कों के लिए, पत्तनों, रेल लाइनों, हवाई अड्डों के लिए। और मुझे खुशी हो रही है कि दूसरी इकाई कुड़नकुलम न्यूक्लियर विद्युत केंद्र की दूसरी यूनिट 2015-16 में चालू हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि इससे हम टैक्स में बढ़ाने के लिए अधिक धन उपार्जन कर सकेंगे। अभी बजट में जो कुछ दिया गया है, इसके अतिरिक्त मनरेगा में भी हम 5,000 करोड़ रुपए का और निवेश कर सकेंगे। खाड़गे जी जो कांग्रेस के नेता है विपक्ष में, वो बहुत ही प्रसन्न होंगे। मैडम दिस विल खड़गे जी ने कहा कि आपने मेरा नाम लिया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। $5,000 करोड़ रुपए मनरेगा में निवेश होगा, जो सबसे अधिक हो, और बढ़ाने में भी लाभ इससे मिलता रहेगा। एकीकृत बाल विकास योजनाओं में 500 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और 5,000 करोड़ रुपए जो राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसमें निवेश किया जाएगा। और भारत में लोग आए और निवेश करें, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम विश्व स्तर के इक्विटी बाजार की स्थापना करेंगे और जो पब्लिक ऋण की योजना है उसमें सुधार लाएंगे। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और सेबी को एक बना दिया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। और इसके लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट है और आरबीआई एक्ट है उसमें संशोधन किया जाएगा। मैं प्रस्तावित करता हूं कि सेमा का धारा 6 जिसमें कैपिटल आय, इन सब पर संशोधन किया जाएगा। जो लोगों को शिकायत है इस क्षेत्र में, विशेषकर जो फाइनेंशियल प्रोवाइडर है उनके खिलाफ जो शिकायत है उसको दूर करने के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेंटर और अपील करने का प्रावधान रहेगा। और इसमें जो योजनाएं हैं वो उनकी प्रगति संतोषजनक है। जस्टिस श्री कृष्ण समिति जो है वो समय समय पर इसमें दोबारा एक देख रही है। अध्यक्ष महोदया, ये केवल आरंभ है। हम एक सीधे टैक्स व्यवस्था की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहन देंगे और हम इससे पारदर्शिता और भी अच्छी कर सकेंगे। जो पीपीएफ और ईएसआई में जो धन पड़ा है, निरर्थक पड़ा है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए दो विकल्प हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए दो विकल्प हैं। जो इसमें ईपीएफ में योगदान है वो स्वैच्छिक होगा, अनिवार्यता नहीं होगी। और इन चीजों को लागू करने के लिए जो संशोधन कानून में होगा वो हम शीघ्र ही लाएंगे। महोदया, भारत पूरे विश्व में सोने का 800 से लेके 1000 टन सोना जो है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, और ये सोना न तो उसका व्यापार होता है न उसकी अर्थव्यवस्था में कोई योगदान है। और इसलिए और अभी जो सोना जमा है, सोने के जो ऋण है, इन सब में ऐसी योजना होगी जिससे आप ऋण दे सकें और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और उसके लिए आप पैसा पैदा कर सकें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाए जाएंगे और इससे सोना जो है निरर्थक नहीं पड़ा रहेगा, सोता नहीं रहेगा। और जिनके पास बॉन्ड है, जब उसको वापस देकर के सोना लेना चाहें तो उस समय जो रेट होगा उसके अनुसार उनको जो है पैसे दिए जाएंगे। और हम भारत में ही स्वर्ण सिक्का बनाएंगे। जब भारत में ही स्वर्ण सिक्का बनेगा तो विदेश से लोग स्वर्ण सिक्कों को आयातित नहीं करेंगे। और जो बहुत लोगों को, जो अधिकतर लोग भारतीय जो हैं, आप रुपए पर आधारित डेबिट कार्ड लेंगे और कैश यानी नगद राशि में जो आप देते लेते रहते हैं उसमें हम उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, बल्कि जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में प्रोत्साहन देंगे। और अब हम विदेश से भी निवेश को प्रोत्साहन देंगे और जो भारतीय कंपनियां हैं वो विदेश से निवेश करा सकेंगे। और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और स्वदेशी निवेश में जो इस समय बीच में दूरी है उसको हम कम करेंगे, बल्कि बीच में हम उसकी दूरी हटा देंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में जो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए और अनेक अलग अलग उद्देश्य से बनाई गई कंपनी का हम कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम जैसे देशों में उनके साथ सीधा संपर्क रखेंगे। महिला सुरक्षा के लिए मैंने निर्णय किया है कि 1000 करोड़ रुपए निर्भया फंड में हम जारी करेंगे बजट। विश्व सांस्कृतिक स्थान ऐसे जहां भारत में हैं उन सब के लिए जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके पार्किंग स्थान आदि और शौचालय आदि का निर्माण होगा।
मैं प्रस्तावित करता हूं कि निम्नलिखित जो चर्चेज और कॉन्वेंट्स जो पुराने गोवा के हैं, हम्पी कर्नाटक, विजयनगर साम्राज्य का, कुंभलगढ़ और अन्य रानी का बाग गुजरात में, ले पैलेस लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, वाराणसी जो मंदिर नगर है, और जलियांवाला बाग अमृतसर में, और कुतुब हैदराबाद तेलंगाना, ये सब ऐसे साइट्स हैं। संभवतः लोगों ने कहा कि इसमें बहुत सी चीजें और भी शामिल होनी चाहिए और इसीलिए हंगामा का दृश्य हो गया। तो वित्त मंत्री ने कहा प्रतीक्षा कीजिए, जिन स्थानों का अभी नाम लिया गया है, जब इनमें सफलता मिलेगी तो अन्य स्थानों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। On arrival issued to travelers of 43 countries. आने पर जो वीजा दी जा रहा है 43 देशों में, 43 देशों के नागरिकों को। Madam, last year we had announced visas on arrival. अध्यक्ष महोदय, 43 देशों को पिछले वर्ष यहाँ देश में आने पर वीजा देने की व्यवस्था थी, और अब मैं Covered under the scheme to 150 in different states. 150 देशों के लोगों को ये सहूलियत अब दी जाएगी। Hurts the poor more than others. We are committed to making our development process as green as possible. और हम अपने इस Carbon tax on most petroleum products. कार्बन टैक्स जो है पेट्रोलियम पदार्थों पर लगा रहे हैं ताकि हरित क्रांति जो है वो जारी रहे, हरित पट्टियां बनती रहें। This year, I intend to start on that journey too. My government is launching a scheme for faster adoption and manufacturing electric vehicles. हमारी सरकार Proposing an initial outlay प्रोत्साहन दे रही है कि बिजली से चालित जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या में वृद्धि की। अपना लक्ष्य संशोधित करके 1,75,000 मेगावाट कर दिया है। इसमें सौर द्वारा 1,00,000 मेगावाट, पवन द्वारा 60,000 मेगावाट, बायोमास द्वारा 10,000 मेगावाट, लघु पनबिजली से 5,000 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता शामिल है। अध्यक्ष जी, हमने घोटालों, घपलों, भ्रष्टाचार राज को पीछे छोड़ दिया है। सार्वजनिक प्रापण में कदाचार को एक अधिप्रापण कानून और एक संस्थागत ढांचा जो अनसीट्रल मॉडल के अनुरूप हो लाकर रोक सकते हैं। मुझे विश्वास है कि संसद को शीघ्र ही इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमें प्रापण कानून की जरूरत है, और यदि हाँ तो उसका आकार प्रकार क्या हो? दूसरी तरफ सरकारी संविदाओं में उत्पन्न विवादों को सुलझाने में काफी समय लगता है और उनके समाधान की प्रक्रिया भी काफी खर्चीली होती है। My government proposed से विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को सुसाध्य बनाने के लिए मेरी सरकार ऐसे विवादों के समाधान हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए सार्वजनिक संविदा विधेयक पूर्व स्थापित करना चाहती है। मेरा ये भी मानना है कि मुझे लगता है कि अवसंरचना के विविध क्षेत्रों में प्रचलित नियामक व्यवस्थाओं में भी आम दृष्टि और दर्शन के अभाव की समस्या से निपटने में की आवश्यकता है। अतः हमारी सरकार विनियामक सुधार विधेयक पूर्व स्थापित करना चाहती है। इससे अवसंरचना के विविध क्षेत्रों में एक सर्वमान्य दृष्टिकोण बहाल किया। सुधार कानून जो नियंत्रित करेगी इन चीजों को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न क्षेत्रों में हम सुधार लाएंगे। भारत में 54% से अधिक लोग 25 वर्ष की आयु के नीचे के हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम उत्थान को भारत में निर्माण करो योजना से संबंधित करेंगे। हम शीघ्र ही एक ऐसी योजना बनाएंगे ताकि लोग स्किल्ड वर्कर्स बने और अनेक मंत्रालय उसमें संबंधित रहेंगे। 31 क्षेत्रीय परिषदें होंगी जो इसमें सलाह देंगी, कार्यान्वयन करेंगी।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कुशल योजना के अंतर्गत डिजिटल वाउचर के माध्यम से लोगों के, विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जब जन्म शताब्दी मनाई जाएगी तो हम बहुत ही अच्छी तरह से उसको मनाएंगे और उस समय उसके लिए एक समिति की घोषणा होगी जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय छात्र हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी योजना रहेगी, जो छात्रवृत्ति कैसे लागू की जाए और उसका प्रबंधन कैसे हो, उस पर उच्च शिक्षा जो नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं उनको सहायता की जाएगी। जो अभी हम योजनाएं बना रहे हैं, यदि इनमें किसी को कोई रह जाए तो ये नहीं कि केवल बजट में ही सूची बन रही है, बाद में भी सरकार उस सूची में अन्यों को सम्मिलित कर सकती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में keeping in view the need to augment medical services in बिहार already AIIMS है। I propose to set up another AIIMS-like institution। जहां एक एम्स है, उसके अतिरिक्त हम एक एम्स की स्थापना और करेंगे IIT कर्नाटक में और धनबाद में माइंस का विद्यालय बनाया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इन अमृतसर में पोस्ट ग्रेजुएट बागबानी अनुसंधान का केंद्र बनाया जाएगा। इन केरला और केरला में एक्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग इनटू अ यूनिवर्सिटी जो अभी स्पीच है उसको विश्वविद्यालय के स्तर तक लाया जाएगा। इन नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन महाराष्ट्र, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि में, नागालैंड, उड़ीसा में ये इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में एनिमेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा और उत्तराखंड में और जो पब्लिक सेक्टर में जो बैंक हैं उसमें के लिए एक ब्यूरो जो है उनको सहायता देगी कि किस प्रकार से वो नवीन प्रकार के साधनों से अपना प्रबंधन कर सकें। महोदया, मैं सदन को ये सूचित करना चाहूंगा, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर 5 लाख गांव में ऐसे राज्य जो योजनाएं बनाना चाहते हैं उनको जो कॉस्ट है उसका हम रिइंबर्समेंट किया जाए। आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले कहा है कि वो इस योजना में सम्मिलित हो गए। जो फाइनेंस कमीशन ने सभी राज्यों को एक समान समझा है, किंतु फाइनेंस कमीशन के जो इस समय सबसे अधिक लाभ होगा उसमें बिहार है कि पूर्वांचल को हमें और भी सहायता देने की आवश्यकता है। बिहार और पश्चिम बंगाल को भारत सरकार जैसे आंध्र प्रदेश में सहायता दी है, तेलंगाना में उसी प्रकार से जो कानूनी आर्थिक सहायता दी जाएगी। हम गरीब वर्गों को, निर्धन वर्गों को और
मध्य श्रेणी के वर्ग के लोगों को सहायता देने के लिए वचनबद्ध हैं। 968 crores to the educational sector, including midday meals, 33,152 to the health sector, 79 मध्यकाल भोजन के लिए विशेषकर ऐसे स्कूलों में जहां ये चल रहा है उसमें मनरेगा के crores to the educational sector, including midday meals, 33,152 to the health sector, 79 मध्यकाल भोजन के लिए विशेषकर ऐसे स्कूलों में जहां ये चल रहा है उसमें मनरेगा के अंतर्गत ये और भी बढ़ाया जाएगा। 351 for women and child development, 4,001 महिलाओं और शिशुओं के उत्थान के लिए और नमामि गंगा की स्वच्छता के लिए इन कार्यक्रमों पर quantum of deep in expenditure in these areas. हम जो Urge the states to utilize their enhanced resources खर्च करना है in these areas. वो केंद्र तो करेगा ही, हम राज्यों को आमंत्रित करते हैं कि वो भी एक राशि लगाएं। Corridor on the Ahmedabad-Durera investment region in Gujarat and the Shendra-Bidkin Industrial Park near Aurangabad in Maharashtra are now in a position to start work on basic infrastructure. In the current year, I have earmarked गुजरात में अहमदाबाद और महाराष्ट्र में औरंगाबाद क्षेत्र में जो provide additional funds. नए क्षेत्र में हम वो कार्य आरंभ कर रहे हैं जिनको अधिक आर्थिक Anything else? सहायता चाहिए वो वित्त मंत्री उस पर विचार करेंगे। Welcome spin-offs. Our government has already permitted FDI in defense so that Indian-controlled entities also become manufacturers of. भारत सरकार ने रक्षा संसाधनों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेश सीधा निवेश की अनुमति दे दी है ताकि वो यहाँ की कंपनियों के साथ मिलकर के स्तर को और ऊंचा उठाएं। Noted that we have been both transparent and quick in इस सब में हम पारदर्शी रहे हैं decisions. और जो निर्णय हम लेते हैं रक्षा संबंधी विषयों में वो किस प्रकार से चीजों को लाया जाए, खरीदा जाए, इसमें पूरी पारदर्शिता रही है। Of the current year at 2,22,370 crores, the budget allocation for 15-16 is 2,46,727 crores. तो वर्ष 15-16 में जो Produces some of the finest minds, including international बजट में धनराशि की वृद्धि की गई है। avenues in India to fully exhibit and exploit their strength to the country's advantage. GIFT in Gujarat was envisaged as international financial center अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सेंटर गिफ्ट इन गुजरात as Singapore or Dubai, सिंगापुर और दुबई manned by Indians. की तरह Proposal has languished for years. I am glad to announce that the first phase of ये GIFT प्रस्ताव था। become a reality. Appropriate regulations will be issued in the month of. गिफ्ट का प्रथम स्तर जो है वो अब कार्यान्वयन हो गया है और अब हम विश्व स्तर पर इस पर पहुंच रहे हैं। सिंगापुर आदि स्थानों पर जैसा हो रहा है वैसा ही यही होगा। Resolution of commercial disputes. The government proposes to set up exclusive commercial divisions in various high courts in India based on the recommendations of the 253rd report of the Law Commission. विभिन्न उच्च न्यायालयों में जो लॉ कमीशन के अनुसार जो सिफारिशें हैं The government will, during the course of this session, उसके अनुसार before the Parliament, required bills to convert ordinances issued by the government into. हम सहायता देंगे और यही नहीं जो अनेक ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए हैं ये वर्तमान सत्र में ही उनको पूरा करने के लिए बिल प्रस्तुत किए जाएंगे। 12,200 crores. Planned expenditure is estimated at 4,65,277 crore, which will be near to the RE of 2014-15. विभिन्न राशियां वित्त मंत्री ने बताई जिन्हें लागू किया जाएगा 13,77,000 कि कितने लाख करोड़ रुपए किस योजना में वो दे रहे हैं। on defense, internal security and रक्षा में और आंतरिक सुरक्षा पर provided. समुचित व्यवस्था की गई है। 14,49,490 crores. Devolution to the states is estimated to be at
5,23,958 crores. Share of the central government will be 9,19,842 crores. Non-tax revenues for the next fiscal are estimated to be 2,21,733 crores. तो आने वाले वित्तीय वर्ष में जो 3.9% अभी वित्तीय घाटा उसकी राशि बहुत बड़ी है। Madam Speaker, अध्यक्ष महोदया, I now turn to my tax proposals. अब हम टैक्स की ओर ध्यान देते हैं। अब Is an instrument of social economic engineering. Tax कर लगाकर ही हम जो सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाते हैं। basic facilities to the people to improve their quality of life and to जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो कर से जो धन आता है वो लगाया जाता है। in the last 9 months ये हमारा पिछले 9 महीने में प्रयास रहा है कि हम अपनी कर नीति ऐसी रखें a very important dimension जिसमें administration is the fight against the scourge of black money. जो हम काले धन के विरुद्ध जो हमारा युद्ध है वो इसमें एक बहुत ही बड़ा कदम है। Revive growth and investment to ensure that more jobs are created for our youth and benefits of development अधिक नौकरी के हम प्रावधान कर सकें, उसके लिए धन की आवश्यकता है। Constitution of India for goods and services tax in the last session of this August House. GST is expected to play a transformative गुड्स in the way of और सर्विस टैक्स functions. It will add buoyancy to our economy. हम और अधिक धनराशि एकत्र कर सकेंगे तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें एक अच्छा उछाल आएगा। GST from next year. और ये जीएसटी या गुड्स और सर्विस टैक्सेशन जो है इसमें अगले वर्ष से और अधिक पैसा आने की संभावना है। Basic rate of corporate tax in India is 30%. कॉर्पोरेट टैक्स 30% है। ये अन्य एशियाई देशों से हमारा कर ऊंचा है। Moreover, the effective collection of corporate tax is only 23%. लेकिन हम केवल 23% ही कर उगाहते हैं। Corporate tax regime, but we do not get that tax due to excessive exemptions. हम चूंकि टैक्स ऊंचा करते हैं, कर ऊंचा करते हैं, किंतु उसमें लोगों को जो माफी दी जाती है वो और भी बड़ी है। For avoidable discretion. तो इसलिए अनेक ऐसे दबाव बनाने वाले गुट हैं जो कि अनेक वर्गों को उस कर से माफी छूट दिला देते हैं। Lead to higher level of investment, higher level of growth और अब and more jobs. हम ऐसी टैक्स व्यवस्था करेंगे This process कि जिससे कर अधिक आए has to और be necessarily accompanied by rationalization and removal of various kinds of exemptions. जो अभी तक लोगों को माफी दी गई है, छूट दी गई है, उनको उनकी सूची हमें दोबारा बनानी होगी। To start the phased reduction of corporate tax and the phased elimination of exemptions. कॉर्पोरेट टैक्स धीरे धीरे कम करने का हम अभी से करना चाहते थे, लेकिन अभी हम आपको सूचना दे रहे हैं कि अगले वित्तीय वर्ष से ये लागू की जाएगी। Exemption to individual taxpayers will however continue. किंतु जो व्यक्तिगत करदाता हैं उनको अभी जो छूट दी गई है ये चलती रहेगी। I have adopted certain broad themes which include measures to curb black money, काले धन की और भी शुरुआत ना हो उसको हम रोकेंगे manufacturing and make in India, और देश में ही निर्माण हो, मेक इन इंडिया की स्कीम, और to middle class taxpayers, जो मध्यम वर्गीय करदाता हैं उनको हम लाभ दे सकें, स्वच्छ भारत में धन लगा सकें और अर्थव्यवस्था में और भी अधिक धन डाल सकें। tax proposals is to effectively deal with the problem of black money हमारे जो प्रस्ताव है ये हम चाहते हैं कि काले धन को कम से कम किया जा सके
और जब तक काले धन का उपार्जन हम रोक नहीं देते या बहुत अधिक कम नहीं कर देते, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। अक्टूबर 2014 में जब स्विट्जरलैंड जाकर के हमारे रेवेन्यू विभाग ने ये वहां पर बातचीत की और पाया कि जो बहुत से बैंक अकाउंट हैं जो सच्चे नहीं हैं, उन्हें कैसे कम किया जाए, तो उसमें सुधार आया। जो ऐसे विदेश में लोगों के पास संपत्ति है और जिसको उन्होंने बताया नहीं है, उस सूची में और वृद्धि होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अपना स्टेटमेंट सब लोग कर सकेंगे और इससे जो हम काले धन कहां पर लोगों ने लगाया है, कहां जमा किया है, उसको हम सोच सकेंगे, क्योंकि ये धन देश का है, भारत का है। और इसलिए और निर्णय किया गया है और काले धन पर एक नया कानून लाया जाएगा जिससे हम काले धन को निर्मूल कर सकेंगे। और वर्तमान सत्र जो संसद का है, इसी में हम ये कानून लाएंगे। जो वो बिल ऐसा लाया जाएगा जो टैक्स की चोरी लोग करते हैं और चोरी जो करेंगे, जो अपने विदेश में संपत्ति छिपाएंगे, उनको सजा दी जाएगी, कारागार दिया जाएगा 10 वर्ष तक की अवधि का। और जो टैक्स की चोरी करते हैं, कर की चोरी करते हैं, उनको 300% से अधिक टैक्स लगाया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। और जो अघोषित विदेशी पूंजी लोगों के पास है, विदेशी संपत्ति है, उसमें जो अभी तक को छूट दी जा रही है, वो छूट बंद कर दी जाएगी। यदि विदेश में संपत्ति है और कोई अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल हुआ है, तो आप टैक्स देने के योग्य है या नहीं, फिर भी आपको टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा। और अपनी आय का जो ब्यौरा दिया जाएगा आयकर विभाग को, उसमें इन सब की चर्चा की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अनुसार विदेश में संचित संपत्ति को छिपाना, कर न देना, ये काले धन में व्यापार करने के समान होगा और इस पर लोगों को बहुत ही जो क्रिमिनल लॉ है, यानी उसके अनुसार सजा दी जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में संशोधन लाया जाएगा ताकि भारत से बाहर जो लोगों ने संपत्ति जमा की है और अघोषित संपत्ति है, तो अंततः ऐसे लोगों पर फौजदारी का मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसे लोगों पर जो है फौजदारी का मुकदमा चलाया जाएगा और उनको 5 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। बेनामी जो ट्रांजैक्शन है, यानी अपने नाम से नहीं बल्कि अपने कुत्ते के, घोड़े के नाम पर लोग संपत्ति अर्जित करते हैं, उन सब पर भी अंकुश लगाया जाएगा। जो
जो लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी या अनाम होती है या दूसरों के नाम पर बना लेते हैं, उन सब पर अंकुश लगाया जाएगा। और अब इनकम टैक्स अधिनियम में संशोधन किया जाएगा कि 20,000 रुपए से अधिक की प्राथमिक राशि नहीं ली जाएगी, अग्रिम राशि नहीं ली जाएगी किसी भी चीज को खरीदने के लिए। से अधिक की प्राथमिक राशि नहीं ली जाएगी, अग्रिम राशि नहीं ली जाएगी किसी भी चीज को खरीदने के लिए। CBDT and CBEC will leverage technology and have access to information in each other's database. Madam Speaker, अध्यक्ष महोदया, अब हम हमारे जो विभिन्न विभाग हैं, प्रभाग हैं, वो एक दूसरे से इन आंकड़ों का आदान प्रदान भी कर सकेंगे। भारत में ही निर्माण करो, मेक इन इंडिया, इस दिशा में हम अनेक प्रस्ताव ला रहे हैं। अब हम जो कर लगाएंगे वो इन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा उस पर, और ये नहीं कि केवल धन आया तो टैक्स लग गया, और निजी इक्विटी जो है उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस समय अनेक प्रोजेक्ट्स में धन जमा है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसको तालाबंद जगह से निकालने की आवश्यकता है। इस समय कर का जो स्ट्रक्चर है उस पर देश के बाहर भी जो लोग हैं, वहां से भी जो ऑफशोर फंड मैनेजर हैं, यदि केवल मैनेजर विदेश से आकर के भारत में आकर उस फंड का प्रबंधन करता है तो इसके ये माने नहीं कि वो संस्था भारत से प्रबंधन कर रही है। और इस समय जो निवेश करने के लोगों में प्रवृत्ति है वो सकारात्मक है। ये निर्णय लिया गया है कि हम गार का 2 वर्ष बाद ही उसका कार्यान्वयन होगा, 2017 से। For technical services from 25% to 10%. 25% से घटाकर 10% आयकर राशि ली गई, जहां पर लोगों को जो डिजिटल, जो ऐसे लोगों की सहायता लेनी है कि आधुनिकीकरण किया जा सके। Of minimum 100 workmen is being reduced to 50. और अब ऐसे मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय व्यापार जिनमें पहले 50 व्यक्ति कम से कम कर रहे हों, अब उसको घटाकर केवल 10 व्यक्ति यदि कार्य कर रहे हैं तो उनको मान्यता दी जाएगी। I propose to reduce the rate of basic custom duty on certain inputs, raw material, intermediates. कुछ आयातित वस्तुएं, कच्चा माल आदि पर जो सीमा शुल्क है वो घटा करके अब जो परिवर्तन है उससे
due to the levy of SAD. अब टैक्स के कारण जो लोग घबराते थे वो नहीं घबराएंगे। ITA bound items from SAD and reduce the SAD on imports of certain other inputs of raw materials subject to the actual user condition. These changes are detailed in an annexure to my budget speech. इस बजट वक्तृता के अंत में जो Focus on the ease of doing business. नियमों का पूरा विवरण दिया गया है। Of tax procedures without compromising on tax revenues. The total wealth tax collection in the country is 1008 crores in 13-14. 1008 करोड़ रुपए 13-14 वर्ष में हुआ और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जो है ऊंचा है, पैसा कम आता है। क्या हम इसको जारी रखें वेल्थ टैक्स पर? The rich and wealthy must pay more tax than the less affluent. हमारा निर्णय है कि जो धनाढ्य हैं और जो जिनके पास बहुत धन है वो अधिक टैक्स दें and replace it with an additional 2% surcharge on the super rich with a tax. जो सुपर रिच हैं, अत्यंत धनाढ्य हैं, उनको आयकर पर 2% सरचार्ज लगाया जाए। Enable the department to focus on ensuring compliance and widening of the tax base. और जो आयकर विभाग है वो इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा कि लोगों से कर को लो और इकट्ठा करो, बजाय इसके कि कर न लिया जा सके। On the 2% additional surcharge. Further, to track wealth held by individuals and entities, the information regarding assets which are currently required to be furnished in the wealth tax return will be captured in the income tax returns. अभी तक वेल्थ टैक्स रिटर्न में जो लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया करते थे, अब उसकी जगह आयकर का जो नियम रिटर्न है उसमें उसकी चर्चा करना आवश्यक होगा। From the previous government contains several ambiguities. This provision is पूर्व की सरकारों ने जो कानून बनाया उसमें कई संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि उसमें बहुत सी कमी है। Companies to their stakeholders will be addressed by the CBDT through a clarificatory circular. These changes would eliminate the ये परिवर्तन कानून में ऐसे लाए जाएंगे ताकि जो करदाता हैं उनको परेशानियां न उठानी पड़े। Retrospective tax provisions adversely impact on stability and predictability of the taxation regime, and resort to such provisions shall be avoided. Further, to reduce तो ऐसी जगहें जहां पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम टैक्स लेने का कानून था उन सब में संशोधन की आवश्यकता है। 5 crores to 20 crores. In order to rationalize the MAT provisions for FIIs, profits corresponding to their income from capital gains on transactions in securities which are liable to tax at a lower rate shall not be subject to MAT. The Tax Administration Reforms Commission has given a number of recommendations to improve administration in tax department. These recommendations are in the advanced stage of प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनेक सुझाव दिए हैं कि आयकर विभाग में प्रशासन में किस हम संशोधन करें, नए परिवर्तन करें, उस पर विचार किया जा रहा है। In effect, the general rate of central excise duty of 12.6% केंद्रीय उत्पाद कर पर यह सुझाव दिया गया है कि उच्च शिक्षा के लिए सेस लगाया जाए। Central excise duty in certain other commodities as detailed in the annexure. However, in the case of petrol and diesel, such specific rates are being revised only to the extent of subsuming the quantum of पेट्रोल और डीजल पर जो हम keeping the total incidence of excise duties unchanged. The ad valorem rate of excise duty नए रेट से जो टैक्स लेंगे वो 12% with a few exceptions are not. वित्त मंत्री के इस भाषण में जो अंत में सूची दी गई है, applicable to pan masala, gutka and certain other. पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि पर To give a boost to domestic leather footwear industry. कानून कर बढ़ाया जाएगा, On footwear where leather uppers किंतु जूते चप्पल आदि पर more than 1,000 per pair is being reduced to 6%. जो अभी 1,000 रुपए से कम के जो जूते चप्पल आदि हैं उन पर जो है कर
घटाकर 6% किया जा रहा है। Assessees under the taxes will be allowed to issue digitally signed invoices and maintain electronic records. These measures will cut down a lot of paperwork. करदाता को यह अनुमति होगी कि वो अपनी संपत्ति, अपनी आय, अपने कर, इन सब को इकट्ठा करके अपने आप डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी में डाल सकेंगे। is clearly awaited by trade and industry. To facilitate smooth transition of levy of जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स पर it is proposed to increase the present rate of service tax plus education test from 12.36 to a consolidated rate of 14%. अभी 12.3% से बढ़ा करके 14% किया जा रहा है। Environment are very important social causes. The fourth pillar of my taxation proposal this year therefore relates to initiatives for the Swachh Bharat Abhiyan. In my direct tax proposals, I have proposed स्वच्छ भारत अभियान में और अधिक राशि देने के लिए by way of CSR contributions to the Swachh Bharat Kosh. ये जो कोष बनाया जा रहा है उसमें अधिक पैसा दिया जाएगा। स्वच्छ भारत कोष और नमामि गंगे यानी गंगा की स्वच्छता पर और भी अधिक पैसा लगाया जाएगा। Clean energy cess from 100 to 200 rupees 200 per metric ton of coal to finance the clean environment initiative. अभी तक प्रति मेट्रिक टन कोयला पर जो 100 रुपए का कर था उसे बढ़ाकर 200 रुपए प्रति मेट्रिक टन किया जाएगा। कारण यह है कि वो धन स्वच्छता में लगाया जाएगा, वातावरण स्वच्छ हो, पर्यावरण स्वच्छ हो। This cess will be effective from a date to be notified. और कब से ये सेस लागू होगा इसकी अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। Swachh Bharat. स्वच्छ भारत अभियान में इससे योगदान मिलेगा। Affluent treatment plant from service tax. The concessions from customs and excise duty currently available on specified parts of manufacturing of electrical operated vehicles and hybrid vehicles are being extended for one more year up to जो अभी तक बिजली से चलने वाली या हाइब्रिड जो गाड़ियां हैं उन पर हम जो टैक्स की छूट है वो अगले 1 वर्षों तक लागू रहेगी। to the middle class taxpayers. हमारी ये आशा है कि जो मध्यम वर्गीय करदाता हैं उन पर कम बोझ पड़े। Increase in limit of deduction इस संबंध में आयकर पर insurance premium जो 15,000 to 25,000. स्वास्थ्य पर जो है छूट है वो 15,000 से 20,000 किया जा रहा है, Health insurances as a part of our social security program. ताकि हम This will also enable अपनी स्वास्थ्य के लिए जो है बीमा करा सकें। this limit will be increased to 30,000 from the existing 10,000. और 10,000 अभी जो है Citizens उनके वरिष्ठ नागरिक और अत्यंत वरिष्ठ नागरिक insurance जो 80 वर्ष से ऊपर हैं 30,000 towards expenditure incurred on their treatment will be allowed. जो अभी तक 30,000 जो अभी वो खर्च कर रहे हैं हर वर्ष जो उन्होंने अपने दवाई और उपचार पर खर्च किया है उसमें 30,000 रुपए कर मुक्त होगा। serious nature is proposed to be enhanced to 80,000 in the case of senior citizens. वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। Deduction of 25,000 will be allowed for differently abled persons under section जो विकलांग हैं and section 80U of the उन पर 25% की छूट दी जाएगी। The limit of deduction on account of contribution to a pension fund and the new pension scheme is proposed to be increased from rupees 1 lakh to 1,50,000 पेंशन स्कीम और नवीन पेंशन स्कीम पर The next proposal, madam, is important. 1 लाख से 1.5 लाख बढ़ा दी गई है राशि। Provide social safety net, the facility of pension to individuals. सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत व्यक्तियों को Rupees 50,000 और अधिक सहायता देने के लिए proposed to be provided for contribution to the new pension scheme. नई पेंशन स्कीम में CCD. जो योगदान दे रहे हैं लोग India उसमें become a pensioned society instead of a pensionless society. तो
अपने छूट जो दी जा रही है, अर्निंग काल में जो भी पेंशन फंड को 50,000 रुपए तक देगा सालाना, उसको टैक्स की उस वर्ष की 50,000 रुपए तक जो पेंशन फंड में जमा करेंगे, उसकी पेंशन बन सके। वो इन्वेस्टमेंट आगे जा करके उनकी पेंशन जारी हो सकेगी। was recently launched by the Prime Minister is already eligible for deduction under 80C. All payments धारा 80C beneficiaries आयकर girl child अधिनियम के अंतर्गत interest payment on deposits will be fully exempted from tax. जो डिपॉजिट दी जा रही हैं, विशेषकर जो लड़कियों के लिए, उन पर Transport allowance, टैक्स फ्री रखा जाएगा। which is allowed to all taxpayers and is currently at rupees 800 per month. Transport allowance exemption is being increased from rupees 800 to rupees 1600 per month. यातायात पर जो 800 की छूट थी प्रतिवर्ष, वो बढ़ाकर 1,600 रुपए की जा रही Exemption है। will be provided on the Varisht Bima Yojana. वरिष्ठ Increased from rupees 800 to rupees 1600 per month. यातायात पर जो 800 की छूट थी प्रतिवर्ष, वो बढ़ाकर 1,600 रुपए की जा रही Exemption है। will be provided on the Varisht Bima Yojana. वरिष्ठ बीमा योजना पर Speaker, टैक्स I am की छूट दी giving जाएगी। concessions to individual taxpayers despite inadequate fiscal space. After taking into account the tax concessions given to the middle class payers in my last budget and in the present one, पिछले बजट में और अभी जो मध्यम वर्गीय करदाता है, taxpayer can now get a benefit up to उनको जो छूट दी गई थी 4,44,200 4,40,200 in the annexure. As and when रुपए की my fiscal capacity improves, छूट दी जाएगी। individual taxpayers will have a lot to look forward to. और अभी जो ये छूट दी जाती है, ये और बढ़ाई जाएगी जब अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो जाएगी। To taxation. These include conversion of existing excise duty on petrol and diesel to the extent of rupees 4 per litre to road cess to fund investment in roads and other infrastructure. ये जो कल विषय उठे यहाँ पर कि दुनिया में तेल की कीमत में कमी हुई है, जो उपभोक्ता को भी दिया है, उसमें से कुछ लाभ हाईवे कंस्ट्रक्शंस के लिए और रेलवेज के लिए भी उसका प्रयोग होगा. An additional sum of rupees 40,000 will be made available through this measure to these sectors. वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि कल भी चर्चा इस बारे में हुई थी Pre-cold storage services और सेस और टैक्सेस, ये अनेक साधनों पर जो सड़क यातायात पर हैं, उन पे भी खर्च किया जाएगा। and certain other exemptions are being withdrawn to widen the tax base. Yoga is India's well-acknowledged gift to the world. योग It is proposed विश्व को भारत की देन है। the ambit of charitable purposes of Section 215 of the Income Tax Act. Further, to mitigate problems faced by many genuine charitable organizations, it is proposed to modify ceiling on receipts from activities in the nature of trade, commerce, business. योग को और प्रोत्साहन देने के लिए अब जो कुछ छूट दी गई है, उसमें और भी अधिक छूट दी जाएगी, विशेषकर जो दान पर चलने वाली संस्थाएं हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। Most of the provisions of the direct tax code have been included in the Income Tax Act. Amongst the very few aspects of the DTC which were left out, we had addressed some issues in the present budget. Further, jurisprudence on income tax is well evolved. Considering these भारतीय आयकर अधिनियम में विशेष और आवश्यक संशोधन किए गए हैं, किए जा रहे हैं। proposals are given in the annexure to the budget speech. सीधा कर और परोक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर। My direct tax proposals would lead to a loss of revenue of rupees 8,315 crore. 8,000 करोड़ रुपए से अधिक कर के संपत्ति में, विशेषकर प्रत्यक्ष करों में इस समय हानि होगी, लेकिन जो परोक्ष कर है उसमें अधिक बढ़ेगा। That expectations from this budget have been high. People who ये urge to undertake रहस्य नहीं है कि आम आदमी की आशाएं इस बजट पर थे कि उनको कर से मुक्ति मिलेगी। even our worst critics would admit that we have moved rapidly in this. जो हमारे ऐसे लोग जो टीका टिप्पणी बहुत करते हैं,
वो भी हमसे सहमत होंगे कि हमने भविष्य के लिए अभी एक नया नक्शा बनाया है और इसमें हम मानसिक रूप से जो है ईमानदारी हमने बरती है और हम लोगों को इसलिए सत्ता में लाया गया है ताकि हम अधिकतर जो निर्धन वर्ग हैं उनको ऊपर उठाएं और दरिद्र नारायण के प्रति जो हमारा समर्पण है वो जारी रहेगा और धर्म, संप्रदाय, जाति पर ध्यान न देते हुए दरिद्र नारायण हम सबके लिए ये करते रहेंगे और उपनिषद से उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये बजट सबके लिए है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने समर्पित किया और वित्त वर्ष 2015-16 के लिए उन्होंने अपने प्रस्ताव इस समय प्रस्तावित किए। मैडम स्पीकर, I beg to lay on the table of the House the following statements और वित्त मंत्री ने Fiscal Responsibility and Budget Management Act फिजिकल 2003 रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ टेबल ऑफ द हाउस पर संसद के पटल पर वो बातें रख दी। Now to move for leave to introduce the finance bill, please. और अब जो फाइनेंस बिल Move to introduce the finance bill. अब वो फाइनेंस बिल जो है वो Madam, I move for leave to introduce the Finance Bill 2015. फाइनेंस बिल 2015 को उन्होंने सदस्य के सामने प्रस्तावित किया। हाँ कहने वालों की संख्या बहुत ही अधिक है और इसलिए Madam, I introduce the bill. और अब बिल Honorable members, जो है लाया गया। many members have demanded that the sitting fixed on Thursday, the 5th March, be cancelled on account of Holi. सबने निवेदन किया था कि 5 तारीख को सिटिंग नहीं हो। आप सबका निवेदन स्वीकृत करते हुए मैं अनाउंस कर रही हूँ कि 5 मार्च को जो सिटिंग हाउस का था वो कैंसिल कर दिया जाता है। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 2nd March 2015.